Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. Hope you all are well, students. So today we start our class 11th CBSE computer science topic, that is Boolean logic. Okay, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th में CBSE के सिलेबस में आता है स्टूडेंट्स. सो वेरी सिंपल टॉपिक वी हैव. ओके, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, and some of the topics we discuss in the next video. If you are new to my channel, please subscribe my channel for more upcoming videos. So what is Boolean logic? Bool का मतलब होता है students to. Okay, ठीक है. Boolean logic means also known as Boolean algebra was developed by mathematician George Boole. Okay, so the term logic means a statement. Boolean means true. तो जहां पर आपको आंसर दो फॉर्म में मिलेगा, या तो यस या नो, ट्रू या फॉल्स, बस वो वाले स्टेटमेंट्स, वो वाले लॉजिक्स हमारे बुलियन लॉजिक्स होते हैं. ओके, दीज लॉजिक्स आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. इससे हम सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाइनरी डिसीजन इज अ डिसीजन विच रिजल्ट इन आइदर अ यस और नो. मैंने आपको क्या बताया कि बाइनरी बुलियन मींस व्हाट, जहां पर आंसर आपको दो फॉर्म में मिलेगा, यस और नो. सो अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, ओके, और उसका आंसर आपको यस और नो में मिल रहा है, तो वो आपका बाइनरी डिसीजन. ओके, एंड ऑल द ऑपरेशंस इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन टू वैल्यूज. कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है? कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश, कोई लैंग्वेज नहीं आती, राइट? कंप्यूटर को आती है binary language. So computer understand only the binary language. Binary language means 0 and 1 language. Okay. So all operations in modern digital computers are based on two values or binary system. Computer system transmit its signal on high voltage or low voltage, which can be denoted by true or false. Okay. Clear? So one value is denoted by true and one is false. Now, this we already discussed so many things in this. So when we combine these binary values, हमने binary values को combine किया, so उससे क्या हुआ? उससे हमारा circuit design हो गया, right? और ये values को हम combine कैसे करेंगे? We can use operators, you can say that, and, or, and, not. Okay? So these three operators, these three gates, you can see that when we are using and combine that, so उससे क्या बनेगा? हमारा circuit design हो जाएगा. Okay? Now, कुछ examples के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. An example we just take from our daily life, right? So, my statement is, should I drink water? So the answer is yes or no. So, what is this? This is a logical decision where answer comes in either true or false. Should I study today? Answer is yes or no. Am I too lazy? Answer in yes or no. So they are called what? They are called logical statement. Okay. Whenever the answer in the form of true or false, this is a logical statement. Okay. So this is the way how we can understand this. A decision which results in yes or no only are known as binary decision. ये हमने पढ़ लिया. But जो values है हमारी true और false, जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, these values are known as truth value. इनको हम क्या बोलते हैं students? Truth value. Okay. And truth table is table which represent all possible values of logical variables and all possible results. Okay. अभी मैं आपको आगे बनाना भी बताऊंगी कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स. सो whenever we just represent any one expression, हमारी कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ओके, सो वो क्या होगा? ट्रुथ टेबल होगी, और उसमें वैल्यूज जो यूज हो रही हैं हमारी, दैट वैल्यूज इज नोन एज ट्रुथ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और false. Now we have three logical operations, students. Okay, three type of logical operations we are using.
दैट इज एंड और नॉट. ओके, एंड और नॉट 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेशंस. अभी हम डिटेलिंग में भी इसको पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन? अभी हमने लॉजिकल स्टेटमेंट भी डिस्कस किया जहां पर आंसर हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में मिल रहा है, राइट? अब सपोज दैट मेरे पास एक स्टेटमेंट है, आई विल हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी. ओके, दो चीजें हैं, आई विल हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी. अब इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है? अगर मुझे कॉफी चाहिए या टी चाहिए, अगर सपोज दैट आई डोंट वांट एनीथिंग, सो दोनों वैल्यूज फॉल्स, राइट? तो आंसर नॉट ड्रिंक, हमें वो भी नहीं चाहिए, फॉल्स. अब आई विल हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, टी नहीं चाहिए, दैट वैल्यू इज फॉल्स. कॉफी मुझे चाहिए, so that is true. Okay, same in that case, I will have a cup of tea. Yes, I want tea, not coffee, so the value is false there, right? If I want both, true or true here. Okay, so according to these values हमारा रिजल्ट भी चेंज होगा. क्लियर? अब इसमें एक और टर्म आती है स्टूडेंट, अगर इन ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बेस पर हमारा जो आंसर है इसमें सारी वैल्यूज ट्रू हो जाती है, राइट? दैट मीन्स 1 आप कह सकते हैं या ट्रू आप कह सकते हैं. इफ ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रुथ टेबल आर ट्रू, इन दिस कंडीशन इट इज नोन एज टॉटोलॉजी. व्हाट इज इट? इट इज नोन एज टॉटोलॉजी. ओके, और अगर सारी वैल्यूज यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, ओके, ऑल द वैल्यूज, then result is known as falsy. Okay, clear? Again I repeat students, अगर सारी वैल्यूज आपकी ट्रू होती हैं दैट इज टोटोलॉजी. अदरवाइज अगर सारी वैल्यूज आपकी फॉल्स होती हैं इट इज नोन एज falsy. Okay, now come to the first logical operator, that is not. नॉट ऑपरेटर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी. इट इज वर्क एज अ इन्वर्टर. ओके, रिवर्स पे काम करता है. अगर आप 0 देंगे तो आंसर 1 आएगा, अगर आप 1 देंगे तो आंसर 0 आएगा. क्लियर स्टूडेंट? दिस इज अ सिंपल थिंग दैट वी आर हैविंग. ओके, इसका जो आपका स्टूडेंट साइन होता है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ. दिस विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. ओके, जैसे आपने सपोज दैट 0 लिखा तो sign is this. So this is zero complement. Okay. So the answer is 1. अगर आप लिखते हैं 1 complement तो the answer is 0. तो अगर आप 0 दे रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, 1 दे रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है. और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ साइन. ओके, दिस इज ऑल्सो अ 0 कॉम्प्लीमेंट, देन द आंसर इज 1 हियर. ओके स्टूडेंट्स, so this is the way how the not operator work. A simple thing we are having, this is not logical not. Okay, if the condition is true the answer is false, if the condition is false the answer is true. इसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रुथ टेबल भी हम डिजाइन कर सकते हैं. ओके, एंड वेन डायग्राम ऑल्सो. सी, if you are giving 0 the answer is 1, if you are giving 1 the answer is 0. okay, इसके अलावा हमारा और कोई पॉसिबल केस इनपुट इसमें हम यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट. ओके, and this is the basic Venn diagram of not operator. Okay, if you give x then you receive x complement, if you give x complement then you receive x. Okay, now come to the end. End means what? End का मतलब होता है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन. ओके, और इसका साइन होता है स्टूडेंट्स डॉट. ओके, अगेन आई रिपीट, एंड मीन्स लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन एंड द साइन इज डॉट. अगर आप a डॉट b लिख रहे हो तो दैट इज मीन्स a एंड b. ओके, अब इसमें किस तरीके से हम वर्क करते हैं एक बार इसकी ट्रुथ टेबल चेक कर लेते हैं. यस, सो एंड आपको ट्रू दे रहा है एंड इन द सम केस वो आपको फॉल्स भी दे रहा है, राइट? सो एंड आपको ट्रू कब दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे. एंड आपको ट्रू तब दे रहा है जब दोनों वैल्यूज उसकी ट्रू है. ओके, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. राइट स्टूडेंट्स? सो
and will return true when both values are true, otherwise it returns false. See, एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, इट रिटर्न्स फॉल्स है, राइट? अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तब भी आपको फॉल्स दे रहा है. सो एंड विल रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ वैल्यूज आर ट्रू. अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स कि मैम हमारे पास हमेशा दो सेट ऑफ इनपुट ही होंगे. अगर मेरे पास ज्यादा इनपुट है, सपोज दैट यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, अगर मेरे पास तीन एक्सप्रेशन है तब मैं ट्रुथ टेबल कैसे बनाऊंगा, राइट? ये भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है. सो यस, आपके पास कितने भी सेट ऑफ इनपुट हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके? कितने भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, आप आराम से उसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं. The concept for this is student a very simple concept we are having. अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है then you can calculate like this 2 raised to the power 2. तो आपके पास चार सेट बनेंगे इनपुट के, ठीक है? अगर आपके पास, मैं आपसे कहती हूँ, तीन सेट ऑफ इनपुट हैं, तीन एक्सप्रेशन है आपके पास, तो आपके पास 8 सेट्स बनेंगे, ओके? 8 सेट्स ऑफ इनपुट आपके पास बनेंगे. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन कैलकुलेट. अगेन आई एक्सप्लेन, अगर आपके पास टू एक्सप्रेशन है देन 2 रेज टू द पावर 2 4 सेट ऑफ इनपुट. अगर आपके पास थ्री एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, सो 2 रेज टू द पावर 3 दैट मीन्स 8. तो 8 सेट ऑफ इनपुट्स आपके पास बनेंगे. क्लियर? अब आपको ट्रुथ टेबल बनानी कैसे है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. सो दिस इज द वे हाउ यू अंडरस्टैंड द लॉजिकल ऑपरेटर एंड. Now come to the next operation student, that is OR. एंड आपको मल्टीप्लीकेशन शो करता है, राइट? देन OR shows you logical addition and the sign is plus. ओके, अगर A plus B आपका लिखा हुआ है so you can read as A or B. ओके, अब इसका क्या हमारा ट्रुथ टेबल का सिनेरियो रहता है स्टूडेंट? दिस विल गिव यू ट्रू इन एवरी केस एक्सेप्ट दिस. ओके, जब तक दोनों इनपुट या जितने भी आपके सेट ऑफ एक्सप्रेशंस हैं वो सब फॉल्स होंगे, देन ओनली इट रिटर्न फॉल्स. ओके, इट रिटर्न फॉल्स. इन द रेस्ट ऑफ द केस स्टूडेंट्स, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी ये आपको ट्रू दे रहा है, राइट? एंड में क्या था, सिर्फ दोनों वैल्यूज जब ट्रू होंगी तभी ट्रू आपको मिल रहा था. इन रेस्ट ऑफ द सिनेरियोज एंड रिटर्न फॉल्स, राइट? बट और ऑपरेटर आपका क्या कहता है स्टूडेंट? दिस विल रिटर्न ट्रू अगर आपके सारे केसेस ट्रू हैं, ओके? तब भी, और एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी ये आपको ट्रू देगा, ओके? अगर सभी वैल्यूज आपकी फॉल्स आती हैं देन दिस विल रिटर्न फॉल्स इन दैट. ओके, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स. हाउ टू मेक ट्रुथ टेबल ऑफ एनी बूलियन एक्सप्रेशन. कोई भी जिसमें 3 इनपुट्स हो, 4 इनपुट हो, 5 इनपुट हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप इजीली बना सकते हैं, राइट? सो देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 सेट्स ऑफ इनपुट, ठीक है? ए बी सी. सो ए बी सी का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया 2 raised to the power 3, that means 8. So 8 set of input. अब यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ स्टूडेंट. अगर आप 8 सेट ऑफ इनपुट ऐसे लिखोगे 0 1 0 1 0 1, सो इट मे बी पॉसिबल कि आप कोई केस रिपीट कर दो, और अगर जहां आपने रिपीट किया वहां आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. सो ये सेट ऑफ इनपुट हम किस तरीके से लिखें कि कोई भी सेट ऑफ इनपुट हमारा रिपीट ना हो, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. 2 raised to the power 3 मीन्स 8. मीन्स मेरे पास कितना है, 8 सेट ऑफ इनपुट, राइट? अब 8 को 2 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 4. 4 का सेट बनेगा. सो 4 टाइम 0 4 टाइम 1. अगेन डिवाइडेड बाय 2. 2 टाइम 0 2 टाइम 1. 2 टाइम 0 2 टाइम 1, राइट? अगेन डिवाइडेड बाय 2. 1 टाइम 0 1 टाइम 1. इस तरीके से आप पहले अपना पूरा इनपुट सेट डिजाइन करेंगे. एक बार और समझते हैं. सपोज दैट मेरे पास 4 सेट ऑफ इनपुट है, तो मेरे पास केसेस हुए 16, ठीक है? अब मेरे पास 16 केसेस मुझे बनाने हैं, राइट? 3 इनपुट 4 इनपुट्स के लिए मुझे 16 केसेस बनाने हैं. सो दैट मीन्स मैं लिखूंगी 16 डिवाइडेड बाय 2.
8 times 0, 8 times 1. Next, 4 times 0, 4 times 1. Then 2 times 0, 2 times 1. Then 1 times 0, 1 times 1. This is the way how we can create this input part. First of all, this is very important. अगर ये वाला input set आपका सही बनेगा, तभी आप आगे अपना क्वेश्चन सही से कर पाएंगे. अगर यही आप गलती करेंगे तो आगे का क्वेश्चन आपका सही नहीं हो पाएगा. ठीक है? अगेन आई एक्सप्लेन इट टू यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट. 2 raised to the power 3, क्योंकि मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, दैट मीन्स 8 सेट ऑफ इनपुट बनेंगे. 8 सेट में मैंने पहले 8 को 2 से डिवाइड किया. ठीक है? देन 4 zeros 4 1, देन 2 zeros, उसका हाफ हाफ करते जाएंगे. क्लियर? चलिए, अब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट. इसका एक एक पार्ट लेंगे हम, छोटा छोटा पार्ट, देन ओनली. सबसे पहले यहाँ पर मैं देख रही हूँ बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया. बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट. 0 है 1 हो गया. ठीक है? 1 है 0 हो गया. तो दिस इज माई बी कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगी ये वाला पार्ट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. प्लस मतलब और. ठीक है? प्लस मतलब और, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. सो ए को इसके साथ एड ऑन करना है. सो प्लस और में क्या होता है कि जहां पर 2 जीरोज होंगी, दैट मीन्स जहां पर 2 फॉल्स होंगे, वहीं पर 0 आएगा, अदरवाइज वो ट्रू देगा आपको. राइट? सो 0 1 1, फिर 0 1 1, यहां पर आया 0 0, तो इसने 0 दे दिया. क्लियर? फिर आया 0 0, फिर इसने 0 दे दिया. 1 1 1. क्लियर? ऐसे आपका ये काम करेगा. तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला. अब आगे क्या कहता है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट. दिस इज होल कॉम्प्लीमेंट. सो इसका होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकलेगा. तो दैट मीन्स जो भी आंसर्स यहाँ पर आएंगे उसका उल्टा हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट मीन्स इनवर्ट. 1 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा. ओके? सो यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया. अब आप देख रहे हैं इस पूरे पार्ट का एंड, मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं है. साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई. ओके? तो इस पूरे पार्ट की मल्टीप्लाई सी से करनी है, ये रहा. ठीक है? और जब मैं मल्टीप्लाई मींस एंड को यूज करती हूँ, सो कब ट्रू मिलेगा आपको, जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे. अदरवाइज हर केस में आपको फॉल्स मिलेगा. ठीक है? तो दिस इज माई सी एंड दिस इज माई a plus b complement whole complement. So 0 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 1 1 1. ठीक है? जहां पर दोनों इनपुट्स आपको ऑन मिलेंगे, 1 मिलेंगे, मल्टीप्लीकेशन में आपको वहीं पर ऑन मिलेगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स दे रहा है. राइट? तो इतना पार्ट हमारा अब ये सॉल्व हो चुका है. अब हमारा ये वाला पार्ट रहता है बी सी. अब बी और सी इन दोनों को क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई का केस एंड केस. एंड में दोनों इनपुट्स 1 होंगे तभी 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा. क्लियर? तो यहाँ पर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. सेम केस 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1. दिस इज 1. और यहाँ पर भी आपको देखो 1 और 1 मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा. ओके? बाकी सभी केसेस में 1 0 1 1 है, तो वो आपको 0 देगा. राइट? अब आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट भी मेरे पास आंसर में है और ये भी है, और इन दोनों के बीच में मुझे क्या अप्लाई करना है, प्लस. प्लस मीन्स और केस का क्या होता है, सिर्फ दोनों फॉल्स होने पर वो आपको फॉल्स देता है. राइट? दोनों फॉल्स होने पर वो आपको फॉल्स देता है, अदरवाइज वो आपको क्या देता है स्टूडेंट्स, ट्रू देता है. ओके? दोनों फॉल्स होने पर उसने आपको फॉल्स दिया, रेस्ट ऑफ द केस उसने आपको ट्रू रिटर्न किया. अब देखते हैं, देखो 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 1 1 1, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 1 1. ओके? अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू देता है आपको प्लस और ऑपरेटर. सो दिस इज द वे स्टूडेंट हाउ वी कैन सॉल्व this type of question. Okay? This is a Boolean expression question. Clear, students? If you have any doubt, then you can write it in the comment section, students. Okay?
Now, some practice questions are there for all of you. You can practice this. In this session, we learn the introduction of Boolean logic, Boolean statements. Logical statements we discuss all three operations and, or, and not. And we discuss how we can make the truth table of any Boolean expression, right? So, hope you like the class, students. If you have any doubt, then write it in the comment section. We will be very happy to help you in your queries, students. Please like this video, share this videos with your friend and subscribe the channel for more upcoming updates.